سب سے پہلے آپ کو بتائیں ٹریفک پولیس کی جانب سے سڑکوں پر روبوٹک گاڑیاں استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ گاڑیاں آئندہ ہفتے سڑکوں پر آ جائیں گی۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ کراچی کی سڑکوں پر اب روبوٹس کی نگاہ، کوئی ٹریفک کی خلاف ورزی چھپ نہیں سکے گی۔ ٹریفک پولیس نے روبوٹک گاڑیاں سڑکوں پر متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ گاڑیاں جدید کیمروں اور سافٹ ویئر سے لیس ہوں گی جو ٹریفک وائلیشن کا فوراً پتہ لگائیں گی۔ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ کہتے ہیں کہ روبوٹک گاڑیوں سے ڈبل پارکنگ اور نو پارکنگ کرنے والوں کو فوری چالان بھیجے جائیں گے۔ ہمارا مقصد ٹریفک نظام کو بہتر بنانا اور شہریوں کی سہولت یقینی بنانا ہے۔ جی بالکل، شروع میں تو لوگوں کافی کوشش تھے اور ان کا رسپانس بھی بڑا مکس تھا، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ان کو اس کا فائدے نظر آ رہے ہیں۔ روڈ کے اوپر ڈسپلن نظر آ رہا ہے، لوگ جو ہے سیٹ بیلٹ پہن رہے ہیں، ہیلمٹ آپ دیکھیں کہ کافی زیادہ استعمال ہو گیا ہے، ریڈ لائٹ جو ہے اس کی ہر کوئی یعنی کہ فالو کر رہا ہے، تو یعنی کہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا کاسٹ جو ہے نا، فائدہ جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ پولیس حکام کے مطابق یہ گاڑیاں مختلف شاپنگ مالز اور ڈپارٹمنٹل اسٹورز کے اطراف پارکنگ اور لین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کو چیک کریں گی۔ سافٹ ویئر کی مدد سے فوری پتہ چل جائے گا کہ کون سی گاڑی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور ڈرائیور کو چالان بھیج دیا جائے گا۔ یعنی کہ جیسے روبوٹک سرجری ہوتی ہے، وہ کوئی بندہ نہیں ہوتا روبوٹ بنا ہوا، وہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو کہ لیورز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی روبوٹک ہی ہے، یعنی کہ اس میں فیس لیس ہے، وہ خود بخود دیکھے گی گاڑی کو، اس کو سمجھے گی، وہ اس کو فیڈ ہوا ہوگا کہ یہ گاڑی غلط کھڑی ہے یا صحیح کھڑی ہے، اگر وہ غلط ہوگی تو اس کو پک کر کے ہمیں بتائے گی سینٹر میں، وہاں سے ٹکٹ جنریٹ ہوگا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق آئندہ ہفتے سے یہ روبوٹک گاڑیاں سڑکوں پر فعال ہو جائیں گی اور شہر کی ٹریفک نظام میں ایک نئی شکل لے آئیں گی۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ ای چالان جرمانوں کے باوجود حادثات نہ رکے۔ کرنگی میں تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں منظور نامی شخص جاں بحق، ایک زخمی۔ موقع پر موجود لوگوں نے بس کو آگ لگا دی۔ جناح برج فلائی اوور پر ٹرک بیریئر سے ٹکرا گیا، ٹرک پھنسنے سے ٹریفک کا پہیہ رک گیا۔ جناح فلائی اوور سے ایم ٹی خان روڈ ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑا۔ ای چالان اور جرمانوں کے باوجود حادثات نہیں رکے ہیں۔ کرنگی میں تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں منظور نامی شخص جاں بحق ہو گیا، ایک زخمی ہوا۔ موقع پر موجود لوگوں نے بس کو آگ لگا دی۔ جناح برج فلائی اوور پر ٹرک بیریئر سے ٹکرا گیا، ٹرک پھنسنے سے ٹریفک کا پہیہ رک گیا۔ شہر قائد میں مجرموں کو پکڑنے والا نظام خود حفاظت مانگنے لگا۔ کلفٹن کے علاقے میں بڑی واردات، سیف سٹی کیمروں کا ڈسٹریبیوشن باکس چوری کر لیا گیا۔ پول پر میٹر سولر پینل موجود لیکن باکس غائب۔ سیف سٹی حکام کے مطابق باکس چوری ہونے کے بعد کیمرے خود اتار لیے۔ میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد پولیس متحرک ہوئی اور باکس قریبی پلاٹ سے مل گیا۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ سیف سٹی کیمروں کا تحفظ اب سنجیدہ مسئلہ بن گیا۔ کلفٹن سے کیمروں کا ڈسٹریبیوشن باکس چوری ہو گیا۔ کلفٹن میں پول پر میٹر اور سولر پینل موجود لیکن باکس غائب ہو گیا۔ سیف سٹی حکام نے تصدیق کی ہے کہ باکس چوری ہونے کے بعد کیمرے خود اتار لیے گئے۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے جاری ای چالان بھی متاثر ہوئے۔ ڈی جی سیف سٹی اتھارٹی آصف اعجاز شیخ نے بتایا کہ باکس میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان ہوتا ہے۔ کیمروں سمیت پروجیکٹ کے تحفظ کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس کو ہدایات دی گئی تھی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس اور حکومت اپنے سامان کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہی تو شہریوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دیکھو یہاں لوگوں کی مال جان یہ محفوظ نہیں ہے تو کیمرے بیچارے کیا کرے گا؟ ہاں یہ تو اچھی بات نہیں ہے، کیمرے چوری ہو جائے، بس محفوظی کے لیے لگائے ہیں تو چوری نہیں ہونی چاہیے نا، جس کے ذریعے چالان ہو رہا ہے، سیفٹی کے لیے ہے نا، اپنے عوام کے لیے سیفٹی کے لیے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کیمروں کا الارم نہ بجنے کی وجہ سے واردات کے درست وقت کا تعین نہیں ہو سکا۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ اسامہ ملک، سٹی 21۔ شاہ میڈیکل سینٹر میں بچی کی ہلاکت، اسپتال سیل۔ کمیشن نے تحقیقات میں اسپتال انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اسپتال عملے، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیم اور پولیس میں تلخ کلامی، ایک دوسرے کو دھکے دیے، مکے مارے۔ ترجمان مصطفیٰ چتوئی کے مطابق بڑی مشکل سے آپریشن تھیٹر، او پی ڈی اور ایمرجنسی کو سیل کیا۔ آئی سی یو اور نرسری میں مریض داخل، 24 گھنٹے میں شعبے بند کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈینگی بخار سے مزید 2 ہلاکتیں، تعداد 31 ہو گئی۔ کراچی میں 419 مثبت کیسز کی تصدیق۔ رواں سال سندھ بھر میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 14,468 ہو چکی۔ پرائیویٹ اسپتالوں میں 82 نئے مریض داخل۔ کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں 291، پرائیویٹ میں 204 بیڈ ڈینگی مریضوں کے لیے مختص۔ شہر میں 36 لیبارٹریاں ڈینگی ٹیسٹنگ کر رہی ہیں۔
सैकड़ों मिलियन खर्च, 13 साल में वैक्सीन की एक खुराक भी तैयार नहीं हुई। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन की तैयारी का मामला, महकमे सेहत ने 2012 से 2023 तक 1700 मिलियन रुपए खर्च किए। 2024 में मंसूबा लाइफ स्टॉक को मुंतकिल करके उन्हें 350 मिलियन जारी किए गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजहार बरहमी, रिपोर्ट तलब कर ली। सैकड़ों मिलियन खर्च कर दिए गए, 13 साल में वैक्सीन की एक खुराक भी तैयार नहीं हुई। मुतालबात के हक में लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज और धरना। सर्विस स्ट्रक्चर, अपग्रेडेशन, प्रमोशन, पेंशन और मेडिकल सहूलियात फराहम करने का मुतालबा चेयरपर्सन बुशरा आराई ने वाज़ेह किया। 30 साल से जायज़ मुतालबात पूरे नहीं हुए, खाली आसामियों पर भर्तियां नहीं की जा रही। खसरा रुबेला मुहिम की बाइकआउट की भी धमकी देती। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। लेडी हेल्थ वर्कर सड़कों पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी वॉक और धरना दिया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए अपने मुतालबात हुकूमत के सामने पेश कर दिए। ऑल लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम यूनियन की चेयरपर्सन बुशरा आराई और जनरल सेक्रेटरी फरज सुल्ताना ने कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स 30 साल से जायज हकूक से महरूम हैं। सर्विस स्ट्रक्चर, अपग्रेडेशन, प्रमोशन, रिटायरमेंट, पेंशन, मेडिकल, खाली उसामियों पर भर्तियां, सुपरवाइजर का फ्यूल समेत दीगर मुतालबात पूरे किए जाएं। सबसे पहले हमारी जो सैंक्शन पोस्टें हैं, जो खाली पोस्टें हैं, उनका बजट पड़ा हुआ है तो वो भर्ती की जाए, रेगुलर बुनियाद पे भर्ती की जाए। बेशक आप उसका NTS लें। दूसरा, हमारा 31 साल गुजर गए, 15 साल हमें रेगुलर हुए गुजर गए, हमारी कोई अपग्रेडेशन, कोई प्रमोशन नहीं है, वो फिलफोर की जाए। और उसके अलावा हमारे सर्विस स्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उस पर काम किया जाए। हमारी डिमांड है कि हमारी लेडी हेल्थ वर्कर और LHS को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हम इन्हीं के हेल्थ की शाख हैं और हमने ये काम करना है। और अगर ये हमारे मुतालबा ना मंजूर किए गए तो आने वाली मुहिम्मात के बारे में हम बाइकआउट कर सकते हैं, हम इस पर फौर कर सकते हैं। यूनियन की ओहदेदारों का कहना था कि अगर महकमा सेहत ने 15 रोज में मुतालबात पूरे ना किए तो तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइजर वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज करेंगी और धरना भी देंगी। कैमरामैन के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। लाइट हाउस और नाले के करीब कपड़े की आरजी दुकानों में आग भड़क, आग ने देखते ही देखते 70 से 80 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 7 से जायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसामा मलिक की रिपोर्ट। शहर कायद में खुश्क मौसम के बायस आग लगने का सिलसिला तेज हो गया। अब तक आग लगने की दर्जनों वारदातें रिपोर्ट हुई। कराची का मसरूफ तिजारती इलाका भी आतिशज़दगी की जद में आ गया। लाइट हाउस नाले के करीब आरजी दुकानों में अचानक आग भड़क उठी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग एक दुकान में लगी जो देखते ही देखते इर्द गिर्द की दर्जनों दुकानों तक फैल गई। फायर ब्रिगेड ने बर वक्त पहुँच कर आग पर काबू पाया। आग बराबर में मौजूद अस्पताल में जाने से रोकी। मुतासरा दुकानदारों का कहना था कि उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना है, जबकि बेशतर दुकानदारों ने बताया कि वो उधार पर माल खरीदते हैं, जिससे उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। आग पहले एक दुकान में लगी जिसने चंद मिनटों में मुतादिद दुकानों को लपेट में ले लिया, जिसमें बंदा यहाँ खड़ा नहीं हो सकता था। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी ये है कि दुकानों का बड़ा नुकसान हुआ है। ये बस अचानक से आग लग गई थी इधर, तो बिल्कुल बुझाने का मौका ही नहीं मिला हमें। ये बराबर में इमारत किस चीज की है? ये हॉस्पिटल है। रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक 12:35 पर इत्ला मिली। 8 से 10 गाड़ियों की मदद से आतिशज़दगी पर काबू पाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 12:35 से हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम में फायर की इत्तला हमें वसूल हुई थी, जो हमारी टीम ने बर वक्त 10 से 12 मिनट में आके यहाँ पे रिस्पॉन्स किया। KMC को हमारी गाड़ियाँ मिला के टोटल 8 से 10 गाड़ियों ने यहाँ पे फायर पे काबू पा लिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिससे फौरी कंट्रोल करके बड़ी तबाही से बचा लिया गया, जबकि मुताल्लिका इदारों ने वाक़ये की तहकीकात का आगाज कर दिया। कैमरामैन सज्जाद रईस और अहमद हुसैन के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तालीम के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर तालीम, वज़ीर आपाशी और चीफ सेक्रेटरी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने स्कूल्स की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मनसूबों में तेज़ी लाने की हिदायत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के तहत 130 स्कीमों पर काम जारी है। 1280 तालीमी यूनिट्स की तामीर शामिल है। प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 15.5 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना है। तकरीबन 4.5 अरब रुपए सरमायाजाती रकम मुख्तस की गई है। मनसूबों के तहत 30 अजला में 481 स्कूल्स की तामीर जारी है। 2 स्कूल्स मुकम्मल और 317 स्कूल्स छत की सतह पर पहुंच चुके हैं। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में इख्तिलाफात इंतहा को पहुंच गए। KE की निजकारी के बाद पहली बार एक फरीक ने इजलास का बायकॉट कर दिया,
जिस के बाद इजलास खत्म कर दिया गया। अहम तरीन इजलास में नए CEO की तलाश को हतमी शक्ल दी जानी थी कि इलेक्ट्रिक में इख्तलाफात उरूज पर पहुंच चुके हैं। इदारे की निजकारी के बाद पहली बार एक फरीक ने इजलास का बाइकआउट किया, जिस पर इजलास खत्म कर दिया गया। इजलास मुकर्ररा वक्त पर शुरू हुआ और सिर्फ 6 मिनट बाद ही खत्म हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख कर बता दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास की अंदरूनी कहानी सिर्फ सिटी 21 पर। इजलास में एक फरीक ने कहा कि बोर्ड के मैनेजमेंट को काम करने नहीं दे रहा है, जिसके बायस वो आज के इजलास का बाइकआउट करते हैं। इजलास में आज 10 में से 9 अरकान मौजूद थे। इजलास में सेक्रेटरी फाइनेंस शिरकत ना कर सके। एक फरीक के 5 अरकान बाइकआउट करके इजलास छोड़कर चले गए, जिसके बाद इजलास ही खत्म कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात के तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास हुआ। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, जाम खान शोरो और दीगर अफसरान शरीक हुए। वज़ीर बल्दियात ने वज़ीर आला को तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती मनसूबों का हजम 78 अरब रुपए से जायद है, जिनमें 756 स्कीमों पर काम जारी है। इनमें 713 जारी और 43 नई स्कीमें शामिल हैं। कराची के 9 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 7 अरब 66 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि KDA के 76 मनसूबों पर 13 अरब 22 करोड़ और KMC के 200 मनसूबों पर 18 अरब 36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि पानी, सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मनसूबों की रफ्तार को तेज़ किया जाए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन की जबरी बरतरफी और इसके नतीजे में बरतरफ मुलाजमीन का गेस्ट हाउस के बाहर एहतजाज। स्टील मिल्स एडहॉक इंतजामिया बुखलाहट का शिकार हो गई। साल भर के बच्चे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की, जिसमें 1 साल के बच्चे पर भी मुकदमा कायम करना कहाँ का इंसाफ है। चंद रोज़ कबल पुलिस रेंजर्स ने मुजाहिरीन को मुंतशर करने के बाद एहतजाज खत्म करवाया था। पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बिला जवाज़ मुकदमा दर्ज किए गए। मुजाहिरीन ने कहा कि अपने हुकूक के लिए एहतजाज हर फर्द का बुनियादी हक है। स्टील मिल्स मुलाजमीन के मसाइल को हल करवाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। रोज़गार की तलाश में माजूर अफराद सिंध सेक्रेटेरिएट के धक्के खाने पर मजबूर। सखर के शहरी शफीकुर रहमान बरोड़ो का कहना है कि सरकारी कोटे पर मुलाजमत नहीं दी जा रही और ना ही हुकूमती नुमाइंदगान मुलाकात के लिए तैयार हैं। क्या कहा, ये जानते हैं। मैं खुद सखर से आया हूँ। सखर से कंदरा लगवा बुढ़ा है। ये उमर फारूक साहब सिंध सेक्रेटरी, ये हमारे मोहल्ले का रिश्तेदार है। ठीक है, मैंने उनके पास भी गया तो हमारा हक है, मैं माजूर मिस्कीन हूँ। आप अल्लाह ने आपको बड़ा जो का उहदा दिया है, मेरे को कहीं नौकरी लगवा दो। उन्होंने कहा पहली बार तो ये तो हम आपको नहीं ड्यूटी देंगे, हमारे पास तुमने नहीं आया। मैंने कहा हम रिश्तेदार आप देखते हो तो मैं कितना गरीब। ये सही खुर्शीद शाह जो MN है, मैं सही खुर्शीद शाह के पास एक बार नहीं गया, 50 बार गया हूँ। मैंने उसको बिल्कुल नीचे भी गिरा था, मैं माजूर मिस्कीन हूँ। फिर सही ने क्या बोला, बस मैं घर जाओ, मैं इंशाल्लाह 1 महीने के बाद ड्यूटी देंगे, तेरे से वादा किया है। सही आवे शाह स्पीकर साहब, उसके पास तो मैं जहाँ भी होता था नारा लगाता था, बहुत बड़ा नारा लगाता था, मैं आवेशा कारकुन हूँ। लेकिन आज मैंने उनको जब वो बोला मैं माजूर मिस्कीन हूँ, ड्यूटी दो, तो वो मिलना मेरे से नहीं आता है, मिलता ही नहीं है। बंगले पे जाता हूँ ना, पुलिस को बोलता है इसको पकड़ो, मैं निकल जाऊँ, नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने ड्यूटी की बात की। वैसे वो मिलता था, गपशप लगाता था, बातें करता था। जब मैंने ड्यूटी की बात की तो अब मिलता ही नहीं है। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान रेलवे ने कैंट स्टेशन की सफाई सुथराई के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मुआहिदा कर लिया। पाकिस्तान रेलवे ने एक और सर्विस आउटसोर्स कर दी। पाकिस्तान रेलवे ने कराची कैंट स्टेशन की सफाई सुथराई के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मुआहिदा कर लिया। SSWBM के 180 वर्कर्स कैंट स्टेशन पर 3 शिफ्टों में अपनी ड्यूटी सरअंजाम देंगे। सफाई सुथराई का तमाम निज़ाम सर्विस 3 साल के लिए आउटसोर्स की गई है। प्लेटफॉर्म, वॉशरूम, ट्रैक, वेटिंग एरिया, रिजर्वेशन, पुलिस स्टेशन समेत वॉशिंग एरिया शामिल हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मुतहरिक 100 इंडेक्स में 1,60,000 की सतह बहाल। 2,473 से ज़ायद पॉइंट से इजाफे पर इंडेक्स बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार का फिर बढ़ता एतमाद। 100 इंडेक्स में 2,473 पॉइंट्स का इजाफा हुआ।
इंडेक्स 1,60,657 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,60,944 से कम तरीन सतह 1,58,974 पर आ गया। स्टॉक माहिर शहरियार भट्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स के 1,70,000 के करीब जाने के बाद मार्केट में मंदी आई और सरमायाकारों ने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दी। ताहम अब दोबारा मार्केट में शेयर्स की खरीदारी का रुझान देखा जा रहा है। 27वीं तरमीम पास होने के बाद सरमायाकारों में एक बार फिर एतमाद बहाल हुआ है और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह IMF से डेट्स आई हैं, नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान को $1.2 बिलियन सिक्योर करने जा रहे हैं। उसके बाद आज मार्केट में दोबारा हमने बाउंस बैक देखा। मार्केट ने एक बार फिर 1,60,000 की सतह अबूर की है। हमें लग रहा है कि IMF से अगर हम सिक्योर कर लेते हैं और जो कमिटमेंट दुनिया भर ने पाकिस्तान से की है, खासतौर पे सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है, अगर वो पाकिस्तान में एग्जीक्यूट होती है, ग्राउंड लेवल पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें नज़र आती हैं, तो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इंडेक्स गुज़िश्ता कारोबारी रोज के इख्तिताम पर 1,58,183 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की ऊंची उड़ान। 1 तोला सोना 8,300 रुपये और 10 ग्राम सोना 7,116 रुपये महंगा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $83 महंगा होकर $4,207 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा मार्केट में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना 8,300 रुपये महंगा होकर $4,43,062 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 7,116 रुपये महंगा होकर 3,79,854 रुपये का हो गया। साथ ही 1 तोला चांदी 228 रुपये इजाफे से 5,662 रुपये पर पहुंच गई। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली मुस्तहकम। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 पैसे की कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 77 पैसे से कम होकर 280 रुपये 76 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 281 रुपये 80 पैसे पर बरकरार है। यूरो 87 पैसे इजाफे से 328 रुपये 60 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 18 पैसे इजाफे से 372 रुपये 42 पैसे का हो गया। UAE दिरहम 2 पैसे बढ़कर 77 रुपये 43 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 75 रुपये 59 पैसे पर बरकरार है। कैदियों की इस्लाह और बहाली के लिए हुकूमत सिंध का अहम इक़दाम। सेंट्रल जेल में फ़नी और पेशावराना तरबियत मुकम्मल करने वाले कैदियों के लिए तक़सीम इस्नाद की तकरीब सजाई गई। दुर्रे शहवार की रिपोर्ट। सेंट्रल जेल कराची में कैदियों के लिए फनी और पेशावराना तरबियती प्रोग्राम की ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पैगाम पाकिस्तान, महकमा जेल खानाजात सिंध और सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के इश्तिराक से मुनक्किद हुआ। वजीर जेल खानाजात सिंध अली हसन जरदारी का कहना था कि हुकूमत कैदियों की इस्लाह और बहाली के लिए जामा हिकमत अमली पर अमल पेरा है। हमारा मकसद ये है कि कैदी रिहाई के बाद माशी तौर पर खुद मुख्तार हो सकें। इसमें सिंध गवर्नमेंट ने और पैगाम पाकिस्तान और जेल डिपार्टमेंट मिलकर ये प्रोग्राम अगली जनवरी में सिद्दीकी साहब ने, शाह साहब मिनिस्टर थे, सरदार साहब को याद होगा, मेरे ख्याल में हमने वो स्टार्ट किया था। आज आस्ते आस्ते पाया तकमील तक भाई साईं उनके तावन से हम पहुंचा रहे हैं। मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि लोग इस मुआशरे में अपना रोजगार करेंगे। IG जेल खानाजात सिंध फिदा हुसैन मस्तोई का कहना था कि सूबे के जेलों में जदीद टेक्नोलॉजी, CCTV और कम्युनिकेशन सिस्टम मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। लाइफ में जिनका यूटिलाइजेशन हो ताकि थोड़ा बहुत बाहर कमा सके। अब आज जो यहाँ से जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज उन्होंने किए और प्लम्बिंग के। और प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन आपको पता है बड़े से बड़े प्रोजेक्ट से लेके छोटे से छोटे यूनिट जो फैमिली है सबके ये इश्यूज़ होते हैं। हर जगह पे इनको ये अपनी ब्रेड एंड बटर कमाने का ये मौका मिलता है। चेयरमैन स्टीविटा जुनेद बुलंद का कहना था कि हम जेलों को सजा के मरकज के बजाय इस्लाह, तालीम और तरबियत के इदारों में बदल रहे हैं ताकि कैदी रिहाई के बाद मिस्बत शहरी के तौर पर जिंदगी गुजार सकें। बिलाल भुट्टो साहब का था कि जो भी कैदी हैं अंदर आते हैं सज़ाओं में या अंडर ट्रायल में सज़ा लग जाती है उनको, या फिर वो किसी भी मजबूरी में आते हैं, तो उनको असल हम ये है कि उनको हुनर स्किल दे के बाहर माशरे में उनको इनकी रिस्पेक्ट इज़्ज़त दिलाएंगे। और ये अभी जितने 134 के करीब हमारे जो है सर्टिफिकेशन हमने दिखी है इनको, और ये पास आउट हुए हैं। अभी इसमें बहुत सारे रिलीज़ हो गए हैं 65 के करीब, तो उनका भी डेटा हमारे पास है। उनको इंडस्ट्री में हम जॉब प्रोवाइड करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर्स पैगाम पाकिस्तान प्रोफेसर मिराज सिद्दीकी का कहना था कि फ़नी तकनीकी तालीम कैदियों को बाइज्जत रोजगार के काबिल बनाती है, जो माशरती इस्तेहकाम और पायदार अमन की जमानत है। अपना वक्त कीमती बना लें, इसके लिए
بلاول زرداری صاحب کے ویژن کے بٹھائے گئے. ایک نوجوان چیئرمین ایسٹیویٹا جنید بلند صاحب سے جب ہم نے بات کی تو مجھے لگا کہ وہ پہلے سے تیار ہیں کہ میں ہر ایک جیل کے ہر شخص کو اسکل ہنرمند بنانا چاہتا ہوں, ان کے بچوں کو بنانا چاہتا ہوں. آئی جی جیل خانہ جات اور پروفیسر میراث صدیقی نے تربیت مکمل کرنے والے قیدیوں میں اسناد تقسیم کی. کیمرامین حارث کے ساتھ دورے شہوار, سٹی 21 نیوز. اب آپ کو بتائیں کہ شوگر کی بیماری سے بچاؤ کے لیے پاکستان سوسائٹی آف فزیشنز کی جانب سے آگاہی سیمینار اور ریلی کا انعقاد. جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے ریلی نکالی گئی. طبی ماہرین نے صحت مند خوراک, صاف سبزیاں اور روزانہ آدھا گھنٹہ واک پر زور دیا. ابراہیم رند کی رپورٹ. شوگر کی بیماری سے بچاؤ کا مشن پاکستان سوسائٹی آف فزیشنز کے تحت جناب میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کرنگی میں آگاہی سیمینار منعقد ہوا, جس میں ماہرین نے بیماری سے بچاؤ کے لیے میڈیکل کے طلباء و طالبات میں آگاہی دی. پاکستان سوسائٹی آف فزیشن سندھ ریجن کے نائب صدر پروفیسر کیسر جمال نے کہا کہ یہ بیماری قابل علاج ہے, آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. ہماری لوگ نوجوانی میں شوگر کے مرض کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے اپنے اوپر صحت کے اوپر توجہ نہ دینا ہے. تقریب سے خطاب اور بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے دیگر ماہرین کا کہنا تھا کہ شوگر کی بیماری اب ہر عمر کے افراد میں بڑھ رہی ہے, جو کہ تشویشناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اموات اور پیچیدگیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. ماہرین نے اس بیماری کی روک تھام کے لیے عوام کو احتیاط اپنانے کی ہدایت کی. پاکستان میں جس طرح ڈائبٹیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, مجھے امید ہے کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے روک تھام میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا. ورزش وہ بھی ہمارے پاس پاکستانیوں میں اس کی بھی کم عادت ہے, اس کو اور بڑھانا چاہیے اور کم از کم 2 سے 3 میل دن میں کم از کم. سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی شوگر چیک کرائیں, ہر 6 مہینے سے 3 مہینے میں جا کر اپنا وزن جو ہے وہ صحیح رکھیں, روزانہ 30 سے 45 منٹ ورزش کریں. جناب میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کرنگی سیمینار کے اختتام کے بعد ریلی بھی نکالی گئی, جس میں پروفیسر, ڈاکٹرز اور میڈیکل کے طلباء و طالبات نے بھی شرکت کی. کیمرامین کے ساتھ ابراہیم رند, سٹی 21.